आइए ना आगे वॉक कर। ज़रा संभल के गिर जाओगे, नहीं आपकी वॉक हो गिरेगी। जाएगी। I think we should just should we remove that table and I can stand there and do the bite. हम लोग कैमरा talking something very impactful and powerful. Focus, yes, on Laura, for sure. Process. So yeah, Megha. Hello everyone. So my name is Megha Dan. I'm the business partner in Made India Pictures. So Made India Pictures has already been there for a long time, but now it has got an office in Goregaon West. So Santosh sir has already been working for 10 to 12 years, and he was running celebrity management company, as you already know. But being a very creative, uh, he has a creative soul, I would say. And I was also a very creative person. I am a creative person. I joined Pinnacle 6 months back. So we wanted to do something for new talent who are sitting in their cities, who can't, come to Mumbai due to some hurdles. It can be anything. It can be money or something else. Yeah. So we thought to do a short film festival so that we can bring all the creative talent to one platform. So here we are, launching this short film festival. So this is a very great initiative, I would say. So it was his idea only, and being a very influential person, he has got great actors on board as well, producers, directors too. So I would like to thank you, all of you, that you have supported us so much. Now I'll hand over the mic to Mr. Santosh Mishra. बहुत छोटी सी बात है ये सफर जो 12 साल पहले शुरू हुआ था. So hi Yuvika, after a long time we are meeting you over here. So although this is about film festival, what it is all about? Can you give us some information about it? Well, this is a platform where a lot of newcomers, new people, talented people, they have opportunity to take a part in this and give their best performance. आई एम वेरी हैप्पी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा जहाँ पे वो दिखा सकेंगे उनका प्योर टैलेंट. एंड ऐसा मौका मिलते रहते हैं, लेकिन दिस प्लेटफॉर्म इज़ गिविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ विद good names, good people, and I'm very excited. Santosh and Megha started amazing platform where everybody can come and join and give their best.
I'm very excited because it's a short film festival and it's going to happen I think all over India. So इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है जहाँ पे आप सब लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. So इसकी डिटेल में आई थिंक इसका फुल डिटेल तो मैं आई एम गोना आस्क them later on कि क्या क्या how they gonna go about it, but I'm very excited. तो जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ these guys are coming with, so I was like very good and I was very excited. So I just want to tell them good luck. When we talk about short films, what type of short films do you like? Short films, see, content should be so nice that you should be hooked towards the film. आपको एक hold करके रखे, आपका मन ना करे उठने का, वो होता है आपका कंटेंट, वो होता है आपका परफॉर्मेंस. वो ऑल ओवर कंटेंट अगर आपका अच्छा है, सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग. और हम सब लोग चाहे शॉर्ट फिल्म हो या प्रॉपर फिल्म हो, वी लुक फॉर द कंटेंट. Is there any rules for this? Like there will be a time limit or is such type of content you should bring in the short film? Is there anything like that? Rules, I'm gonna sit them and ask that what all is happening here. So all I know is this about this short film festival. So details I will let you know because I think these guys will sit and I'm also gonna join them, sit and speak to them what all interesting things happening. Although when we come to you, people are very eager to see you once again in very upcoming ones. Will you like to share something? Well, I am doing very interesting thing. I've always been very at ease when it comes to my work, and now it's more, I'm more selective. I'm doing something which I've never done before. So जो मेरा अभी काम आने वाला, I'm so excited, so thrilled about it that people should see another Yuvika, not रेगुलर जिन्होंने अब तक मुझे देखा है. सो मेरी कोशिश यही रह रही है कि एज एन एक्टर, फॉर मी एज एन एक्टर, मैं लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ. एंड आई एम कमिंग अप विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग. तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाली हूँ. कि आने वाले दिनों में आपका और प्रिंस सर का एक साथ कोई नया सॉन्ग या कोई नई movie देखने मिलेगी? It's a surprise. keep it like a surprise. But yeah, there's something happening. But I'll tell you later on, not now. But let's talk about this event right now. Only film festival, short film festival. Lastly, what will be your message to the all the fans? Oh, I love you all. Whenever I'm in front of camera, it's all for you guys. आप हैं तो मैं हूँ, और इसी तरह प्यार देते रहिएगा. आपके प्यार की वजह से मुझे I just get up every morning and think what next now, I should do something different, amazing, क्या अच्छा लगेगा, कुछ अलग करती हूँ. So I love you all my fan family. These are all are my family, I can consider, because day and night they love us so much, they love me so much, me and Prince and me. Grateful. What else I need? I'm grateful to God and working for them, working for you guys. Thank you. So hi Sharat, Hi. आज आप आए हो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. जी. So what is this festival is all about? सी बेसिकली जैसे अभी हाल ही में मतलब अभी बात हो रही थी कि it's a platform that Made in India Pictures are providing to all that amazing talent that is there in our country. Could be in different states, could be शहरों में, प्रांतों में, गाँव में, अगर हम कहें मेट्रोज. So it's an amazing place, amazing platform where you can come and showcase your talent as a director, as an actor, as a writer, as an editor, as a musician, where you can come and maybe you can just exhibit what you have, and I think it's great. It's a great opportunity. I think अगर ऐसा एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कोई लेकर आ रहा है, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आई थिंक संतोष भाई एंड आई थिंक मेघा बोथ आर एक्चुअली वर्किंग सो हार्ड एंड दे वांट टू काइंड ऑफ bring the best talent that is there in the country, and they want to come and they want to showcase, they want to show to the world that हमारे देश में इतना talent है, जहाँ पे आप शॉर्ट फिल्म बनाइए और अपना टैलेंट दिखाइए, और जो बेस्ट आई थिंक जो होंगे उनमें से कुछ सिलेक्ट होंगे एंड देन दे विल बी शोकेस्ड आई थिंक इन द फिनाले. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई थिंक मैंने भी कहीं से शुरुआत की थी लाइफ में अपने, और आई थिंक मुझे भी इतने साल हो गए, बट मुझे भी कभी किसी ने मौका दिया था, तो आई एम श्योर आपको ही मौका मिल रहा है. सो प्लीज़ ग्रैब ऑन टू इट. Wishing Made in India Pictures all the very best.
इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, लाइक आई सेड अर्लियर, इट्स अ ग्रेट फॉर अ गुड कॉज। एंड जब भी कोई अच्छा कॉज होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं मैं आपको नज़र आ ही जाता हूँ। बाकी जगहों पे मैं इतना नज़र नहीं आऊँगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ हो जहाँ पे आपको टैलेंट के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, अच्छे टैलेंट के साथ, जो हमारे देश में इतना ज़्यादा है। लोग फ़ोन पे फिल्में बनाते हैं, सुना है मैंने, गाँव में ना मोबाइल फ़ोन पे बनाते हैं। और मतलब आपको जब मौका मिल रहा है तो आइए आप, फिल्म बनाइए, शॉर्ट फिल्म बनाइए, जो भी बजट मिलेगा मुझे पता नहीं, एक रिस्ट्रिक्टेड बजट होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो बनाइए। और उसके बाद क्या पता आपकी फ़िल्म जीत जाए, शॉर्ट फिल्म जीत जाए, आपको मौका मिले और बहुत बहुत अच्छा बड़ा काम करने का। विद्रोही में तो हमने आपका काम देखा, वाकई में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, कोई धार्मिक टाइप वो था, लेकिन हाल ही में भी आपका कोई नया project ऐतिहासिक, जी 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 है, जी। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? किसके बारे में? I'm sorry, न्यू प्रोजेक्ट आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है मैं अभी क्या कहूँ, बिकॉज अभी भी यू नो आई एम इन टॉक्स विद अ फ्यू पीपल। ऑब्वियसली अभी मौसम ही ऐसा है बॉम्बे का कि मन कर रहा है बस घर पे रहो और चाय पियो, पकौड़े खाओ। आई थिंक आई एम श्योर हम सबका मन कर रहा है, क्योंकि काम है हमें, इसलिए निकलना पड़ता है। बट yes, I'm right now in talks with some very interesting people, and fingers crossed. Hopefully, my fans and all the viewers will get to hear some good news soon. But हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे I'm kind of dabbling right now. मैंने हाल ही में एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया था जो मैंने टर्की में शूट किया, इस्तांबुल में। वो अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी आए, आप लोग सब देखें उसे, बहुत कमाल का वीडियो शूट हुआ है। और जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी कहना चाहता हूँ लेकिन कहूँगा नहीं बिकॉज मुझे अभी अलाउड नहीं कहना उनके बारे में। But then the audience are very excited about it. Would you like to give any hint? I'm also very excited. Actually, I'm also super excited, or rather, I should say that I'm more excited than all my viewers, because मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है, मैं मतलब खुद I think मुझे अब कुछ 4-5 महीने हो गए हैं जब मैंने अच्छा ब्रेक लिया है। I wanted to kind of unwind, relax, travel, chill. अब हो गया है। अब मैं want to get back to work. I want to get back to what I love doing the most. I want to get back into a character. मुझे पता नहीं क्या होगा वो, सब जानना चाहते हैं, मैं भी खुद जानना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जो भी होगा, आई अश्योर यू, आई प्रॉमिस यू, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग तो आई थिंक मीडिया है, आप लोग मेरी फैमिली है, इतने सालों से हम लोग का एक रिलेशन रहा है आप सबका। नए नए चेहरे जुड़ते रहते हैं, लेकिन परिवार तो वही है। तो आई एम श्योर मुझे आप लोग भी कई बार मुझे, मेरे मीडिया में इतने दोस्त हैं, सब पूछते हैं और क्या आ रहा है अगला, बताइए मुझे, नेक्स्ट क्या है। तो मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊंगा। Last में fans के लिए क्या देखिए, ये जो पीछे जो मेरे आप देख पा रहे हैं, स्टैंडी जो है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल मेड इन इंडिया पिक्चर्स द्वारा ये होने वाला है। वो लोग कर रहे हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। सो ऑल माय फैंस, ऑल माय व्यूअर्स, अगर आप लोग के अंदर टैलेंट है, जो हम श्योर है, अगर आप चाहते हैं वो टैलेंट दुनिया देखे, बाहर आए, तो प्लीज़ रजिस्टर एंड मेक अ शॉर्ट फिल्म। और क्या पता आपको यहाँ बुलाया जाए और आपकी फिल्म जीत जाए और फिर आप और हम मिल सकें। नेवर नो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। So, ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, किस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो स्टार्ट होगा पिनेकल से, कि इस कंपनी को कैसे मैं जानता हूँ, कब से स्टार्टिंग हुई। मैं इस कंपनी के बारे में बहुत पहले से जानता था, फिर और संतोष भाई जो हैं, संतोष गुप्ता जी, तो 2-4 बार मिला भी था। लेकिन कई साल पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने कभी काम नहीं किया था। फिर धीरे धीरे थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में एक गाना था, याद आती है माँ, तो संतोष जी का फ़ोन आया और वो मुझे घर लेने आए और हम लोगों ने चलते कोरोना में, कोविड में गाना रिकॉर्ड किया और फिर वो डब हुआ, फिर रिलीज़ हुआ। फिर अब जाके मेरा एक एसोसिएशन हुआ है अभी कुछ दिन पहले इनके साथ में, 1 वीक पहले। तब जब मैं इनसे मिला तो अभी मुझको 3-4 दिन पहले ये पता चला कि एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। जब इसके बारे में मैंने जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक्सपोजर्स नहीं होते हैं, वो चाहे सिंगर्स हों या डायरेक्टर्स हों। और ये कनेक्शन मुझे वहाँ से मिलता है कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि नए जो लड़के होते हैं, उन्होंने मोबाइल से शूट करके वो एक्शन वीडियोस डाले होते हैं और लोगों ने बड़ी फिल्मों से उनको कंपेयर किया है कि देखिए गांव के लड़के क्या कर रहे हैं और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो उस चीज़ से मैं रिलेट करूंगा कि अगर
कोई छोटी जगह के लड़के हैं अब जिसके अंदर डायरेक्शन का कीड़ा हो या सिंगिंग का हो या एक्टिंग का हो, तो अगर वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं तो उनकी चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, आगे नहीं आ पाती। और सिंगिंग के लिए तो मुझे कॉल्स आते ही हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। शॉर्ट फिल्म्स, जैसे मैं कानपुर से हूँ तो वहाँ पे भी बहुत टैलेंट है लेकिन लोग कर नहीं पाते। तो ये उस चीज़ के लिए बनाया गया है कि आप जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं आप भेजिए, लिंक दिया गया हुआ है इसमें, अपने लिंक को भेजिए और जो हमारी टीम है वो देखेगी और इसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनको अवार्ड मिलेगा। इससे कम से कम वो उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जो छोटी जगह के रहने वाले लोग हैं जो क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इस वजह से आज मैं आया यहाँ पर। लास्टली बता दीजिए कि ये कहाँ आने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, एंड कब लाइक रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। ओके, द 15th ऑफ अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले सबको रजिस्टर करना है। एंड फिर 30th ऑफ अगस्त को इसका अनाउंसमेंट होगा कौन कौन जीता। और इसमें जो जीतेंगे या टॉप 10 या टॉप 20 लोग जो होते हैं ना, जिनकी अब देखिए जीतेगा तो एक ही, अगर 11 जॉनर जैसे बताया है संतोष जी ने कि 10 से 11 जॉनर रखे गए हैं और उसमें एक जॉनर के हिसाब से विनर आएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर अच्छा कंटेंट मिलता है तो उन लोगों की क्लासेस ली जाएगी, अच्छे लोगों से कनेक्ट कराया जाएगा। ये सब मुझे बताया गया है, ये लाइनअप है हमारा। Yes. So, what you would like to say about this short film festival? What is It's a very great, it's a super platform for everybody. In fact, for the newcomers and for the people जिन्होंने काम करके भी रखा है अपना काम डिस्प्ले करने के लिए। आज बहुत लोग होते हैं उनके पास प्रोडक्ट, फिल्म्स, गाने, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, बट to display their work they don't have a platform. So this is a nice initiative where in fact they have a winning prize also. They can display their work and अपना talent judge करवा सकते हैं. They can get their opinion to work more harder. So it's a nice platform. So, do you think that many people are like that? They don't get any chance, and if there are any actor and their children, they get the first preference. Well, No, there's nothing like that, but yes, I somewhere believe and I somewhere second this thought also. बहुत सारे लोगों के पास काम है डिस्प्ले करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो लोग काम करके बैठे हैं, उनका काम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मेरे ही 2 प्रोजेक्ट हैं जिनकी रिलीज़ डेट होना बाकी है। सो वी हैव अ प्लेटफॉर्म, बट लॉट ऑफ वेट एंड हॉल्ट इज़ देयर इन दिस प्रोफेशन। बट वो है ना, देर सही दुरुस्त सही, ऐसी वाली जो कहावत है वो बढ़िया है। सो आइए, साइन अप कीजिए एंड गेट योर सेल्फ जज्ड एंड ऑल द बेस्ट टू विन इट। कल छोटी सरदारनी में भी उन लोगों ने आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, क्या उसके बारे में कुछ आप कहना? बहुत बहुत धन्यवाद है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ दिल से धन्यवाद है जी, आपने मेरा काम पसंद किया है। सो सत श्री अकाल जी। हुण मैं की दसां, it was such a great pleasure working with such a beautiful team. Rajesh sir, the producer, he believed in me the most. So I am from the bottom of my heart and from my soul thankful enough कि he could at least somewhere believe in me, and then I made me Sardar and then perform. So I had obviously responsibility towards my audience, my family, my makers, my industry friends and everybody to fulfill the 10% of it, but somehow I got really good appreciation and the character stood really well. बहुत मज़ा आया सरदार का रोल प्ले करके। वो पग पहन के जो एक शान आती है ना, वो ऑटोमेटिकली बॉडी ऐसी हो जाती है, एंड यू नो दैट देयर समथिंग ऑन योर हेड विच यू हैव टू होल्ड एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर. सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी, सुपर्ब character. Colors gave me this opportunity. They gave me something which I think which was much needed for me to come across for the audience as something really different. So I loved it. Thank you very much. So, गौरव, ऐसा कोई किरदार रह गया है जो अब तक आपने नहीं किया और वो आप करना चाहते हो? क्या कुछ आप शेयर? हाँ यार, मैं एक स्पेसिफिकली अभी जो करना चाहता हूँ, जो मैंने सोचा है
I want to do something related to police. I want to be into a uniform. I want to do something. I mean, see, any outfit you wear, when you get into a costume, when you get into a character के look में, so आपका एक character automatically निकल के आ जाता है. मतलब you behave like that. Be it anything. फ़कीर का रोल हो, सरदार का रोल हो, गरीब का रोल हो, बिजनेसमैन का रोल हो, एक फ्लैम्बॉयंट कॉलेज का रोल हो. When you're playing a businessman wearing a three-piece suit along with a tie, so you behave like one. So that is something which I related with Pug, with being a Sardar. So it was nice. It was totally responsible, and I think Gaurav, I mean me, I'm someone who loves to do something where I get more responsibility over my shoulders or on my head. कि यार नहीं ध्यान रखना है. Pug has to be perfect. Pug has to be something where people should look up to this and style to this. तो पुलिस का कुछ रोल करना, like an inspector or like an whatever, some kind of where you hold up to a uniform and you fulfill as a performer and you convince the audience कि हाँ ये भी कुछ तगड़ा है. क्या आने वाले दिनों में और भी आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे? ज़रूर देखने को मिलेंगे. कुछ नया आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, बट कमाल आ रहा है. ऑल्दो ऑडियंस तो हिंट हमेशा ही चाहती है, क्या कुछ हिंट हिंट क्या दे दूँ? ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, उन्हें हिंट दो तो फिर वो पूरा कंप्लीट कंक्लूजन पे ही आ जाती है. सो या समथिंग नाइस, समथिंग डिफरेंट, अ ग्रेट मीडियम. सो आई एम होपिंग एंड क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड नीड योर सपोर्ट, नीड योर लव, नीड योर ब्लेसिंग and your feedbacks, most importantly your feedback. Lastly, any message to all the fans in your Andaz? In my Andaz, there's always been same that thank you very much once again, because when I say thank you, it really comes from my heart. बहुत दिल से निकलता है thank you. उस thank you के पीछे बहुत सारे emotions होते हैं कि किस चीज़ के लिए thank you बोल रहा हूँ. Thank you very much for giving such a beautiful journey which has restarted again. So keep loving, keep blessing, and your feedback. So I think loving and blessings has altogether everything which comes across with luck. Thank you. Thank you. So firstly, welcome. So what is this film festival is all about? Although there are something about short films and all, will you like to say? Firstly, तो I'd like to congratulate संतोष गुप्ता for such a great initiative, because मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है और बहुत सारे पहले भी लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, बट देयर इज़ ऑलवेज सम रजिस्ट्रेशन फ़ी और देयर इज़ समथिंग और दी एल्स. बट इसमें मुझे ख़ास बात ये लगी कि देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हिम दैट इट्स सच अ गुड थिंग दैट यू आर डूइंग. बिकॉज क्या होता है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाए या सोचें कि ऐसा तो नहीं है कि वील गेट रिकग्निशन और नो. तो द आइडिया इज़ टू गेट मोर एंड मोर टैलेंट, मोर एंड मोर पीपल टू मेक शॉर्ट फिल्म्स, और वो लोगों तक पहुँचे. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. और इसीलिए जब मुझे पता चला एंड दे इन्वाइटेड मी हियर, सो आई सेड ओके आई विल कम एंड सपोर्ट दिस कॉज, बिकॉज मैं जानता हूँ कि वो छोटे छोटे शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना एक मार्क बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है टू क्रिएट कंटेंट and present their own ideas. And in another 10 years, more than 50% of our population, more than 60-65% of our population will be below the age of 35. So मुझे पता है कि बहुत सारे youngsters इससे जुड़ जाएंगे, and I would love to see them, the few selected ones obviously. Any short film which is one of your favorite which you would like to share? बहुत सारी हैं, इन द सेंस एक निरंजन अयंगर ने बनाई थी अभी, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्त्री, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल. काजोल थी उसमें, बहुत इट वाज बहुत सारा अच्छा कास्ट. हॉटस्टार पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर डूइंग इट. मुझे भी बीच में 2-3 शॉर्ट फिल्म्स के ऑफर आए थे, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज आई वाज डूइंग 3 shows एट दैट टाइम, तो वो डेट्स मैनेज नहीं हुई. बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ like there are short films which are made for half an hour, 15 minutes, 20 minutes, and it's great छोटे टाइम में एक अच्छा मैसेज दे देना या एक अच्छी कहानी बता देना. आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज. आज हम लोग खबरों के खिलाड़ी के आप विनर रह चुके हो, एंड इस बार तो बहुत सारे लोग रहे हैं. सो आप देख ही रहे होगे विजुअल्स, क्या कहोगे उनसे?
क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं? या बहुत सभी जानने वाले ही हैं, राजीव है, निशांत है, तुषार, आई मीन आई नो एवरीबडी हु एवर इज़ गॉन, ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई डोंट नो फैजू, बाकी एवरीबडी आई नो पर्सनली, एंड यू नो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, बिकॉज आसान नहीं है वो शो करना, बहुत डिफ़िकल्ट है, यू नो हर दिन इतने सारे टास्क होते हैं, इतने सारे स्टंट्स होते हैं, और उन्हें करना एक वेदर कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं, तो मुश्किल है वो शो करना, बट जो भी वो शो के लिए हाँ कहता है पहले तो उसी को यू नो आई सल्यूट देम, बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट शो. As well as we are saying you're hosting on Ravivar with Star Parivar. Yeah. So how much you are enjoying it? I am loving it. The show is doing so well, so I am absolutely happy and overwhelmed with the kind of response. You know, रविवार पे एक रियलिटी शो आया स्टार प्लस पे, एंड यू नो इट्स डन सो वेल, इतनी अच्छी ओपनिंग मिली, इट वाज अ नंबर 2 शो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव एज अ होस्ट ऑफ द शो. अर्जुन, अगर पूछा जाए ऑन स्क्रीन तो हम देख रहे हैं, ऑफ स्क्रीन आप कितना हैंडल करते हो पूरे स्टार परिवार को, जिस तरीके से उंगली एंड ऑल सबका मज़ा आता है मुझे. आई थिंक दे ऑल आर वेरी स्वीट. वो सच में एक परिवार जैसा ही है, वो सच में एक परिवार जैसा ही है. और परिवार में क्या होता है कि कोई मस्तीखोर होता है, कोई थोड़ा सीरियस होता है, कोई कम मस्तीखोर होता है, लेकिन वो परिवार ही होता है. तो उधर बिल्कुल परिवार वाली फीलिंग होती है जब भी हम शूट करते हैं उसे. एंड इट्स सो मच फन बिकॉज हर शो की फैमिलीज़ इकट्ठे आती हैं, दे कम्पीट करते हैं, एंड somebody you know they win some money there, and और म्यूज़िक बेस्ड रियलिटी शो है, तो एंड एवरीबडी लव्स म्यूज़िक. सबको गाने गैस करना अच्छा लगता है, धुनें गैस करना अच्छा लगता है. यू नो वी हैव डमशराज राउंड जिसमें एक्टिंग से लोग गाने गैस करते हैं, तो बहुत मज़ेदार शो है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और जब मैं भी उसे होस्ट कर रहा हूँ तो मैं पूरे मज़े लेकर, मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट माई सेल्फ, एंड आई लव बीइंग ऑन स्टेज दैट वे. वेल सोशल मीडिया में हमने देखा है कि सुरभि के साथ आपका कोई नया प्रोजेक्ट. Yes, Surbi Chandana you're talking about, yes. I think she's a fabulous actress, और we've done a song together, तो वो अभी आने वाला है, एंड बहुत मज़ा आया. बहुत अलग कहानी है उसकी, पुराने टाइम की एक कहानी है जो आपको देखकर बड़ा मज़ा आएगा, एंड बहुत स्वीट सी लव स्टोरी है उसमें, एंड कैसे शादी के बाद प्यार होता है वो हमने उसमें दिखाया. वेल अगर शादी की आपने बात की तो स्मार्ट जोड़ी में हमने देखा है किस तरीके से हाय हाय जीतते जीतते हार गया मैं. माई रिस्ट इज स्टिल नॉट ओके, इफ यू कैन सी इट्स स्टिल swollen. Yeah, I mean, you know, kudos to Ankita and Vicky, they won the show. But काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं और नेहा वो शो जीतेंगे, एंड वी आर डूइंग सो वेल. बट फिनाले में लास्ट एक राउंड था जिसमें मेरी वजह से एक्चुअली आई गेव अप, बिकॉज एक तो मेरा पैर स्लिप हो रहा था, एंड प्लस माई रिस्ट वॉज हर्टिंग, सो आई कुडंट बेयर इट एनी मोर. But having said that, ठीक है, we had a great journey on the show. The show was not about the task, it was more about mine and Neha's relationship. And I think we have had some great moments on the show, and we'll always cherish them throughout our life. वेल अभी रिसेंट के आपके पोस्ट देखे हैं तो स्विट्जरलैंड वाला कुछ किस्सा आप share अरे करना बहुत ही मज़ेदार जगह है स्विट्ज़रलैंड, एंड आई हैड सो मच फन आउट देयर विद माय फैमिली. और ये पहली ऐसी ट्रिप थी जहाँ पर मैं, मम्मी, मेरा बेटा और माय वाइफ, वी ऑल वेंट टुगेदर अब्रॉड. सो ऐसे तो बहुत जगह गए हैं, लेकिन अब्रॉड पहली बार गए. कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता था कि साथ नहीं जा पाते थे, तो इस बार मैंने सबकी डेट्स ले रखी थी और अपनी भी ब्लॉक कर रखी थी कि नहीं ये ट्रिप तो हमें साथ में करना ही है, एंड इट वाज सो मच फन. आई एम गोइंग टू डू दीज ट्रिप्स मोर ऑफ्टन. और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया, यू नो, मतलब एक तो हर जगह ऐसे घूमो तो लगता है पेंटिंग है, इतना सुंदर है वो शहर, वो कंट्री. और इंटरलाकिन में, लूसन में आई डिड पैराग्लाइडिंग, एंड वी वेंट टू माउंट पिलाटिस. वहाँ पर वी डिड दिस एडवेंचर्स एज मतलब यू नो दिस पार्कोर एक्टिविटीज़ आर देयर. So we did all of that. As a unit, as a family, we had a great time. अर्जुन एज वेल एज रविवार विद स्टार परिवार में आपके साथ तो अभी अरमान भी है, तो क्या गाने वगैरह भी कुछ सीखे हैं साथ ही साथ? मैं गा लेता हूँ उसके साथ. देखो मैं अरमान की तरह, भाई ही इज़ टू गुड अ सिंगर, बट येस आई कैन सिंग, एंड मैं बेसुरा भी नहीं हूँ. सो वो जब गाता है तो थोड़ा मैं भी गा देता हूँ साथ में, है ना. मैं दिल से गाता हूँ यार. तो मेरा, आई एम नॉट अ सिंगर, बट आई डू माई जॉब देयर, आई एन्जॉय माई सेल्फ, एंड आई मेक श्योर एवरीबडी एन्जॉयज विथ मी. Any upcoming projects which are there in the pipeline?
रूहानियत सीज़न 2 and 3 is going to come out very soon. बहुत जल्द अभी आई फिनिश द सेकेंड एंड थर्ड सीज़न, तो वो आने वाला है. एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग रविवार विद स्टार परिवार, एंड वट एवर आई डू नेक्स्ट यू विल गेट टू नो. Like always, thank you so much. I think you guys should really support this cause. Short films, आप भी अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है और आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो तो आप प्लीज़ बनाइए और register yourself. And I think let people see your talent and नई नई कहानियाँ आएंगी और मज़ा आएगा देखने के लिए. Thank you.